Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and today we will study about the first chapter of class 9 CBSE book and the chapter name is The Fun They Had. This is a story which is related to the time, and this story is related to the time is 2157. Actually, this is the comparison between the study material of today's and next after 140 years. This story is written by an American writer, Isaac Asimov. He is not only the writer, he is also the professor of Boston University. So, come to the point and start the lesson. This lesson is related with the time in the period of 2157. At that time, the students will never go to the school like today's. They study through the computers and their classroom or the virtual classrooms, and their teacher is not like the today's teacher humans. They are the robotic teachers which are the pre-programmed for the study of a particular subjects, and they have done any kind of book on the printed paper. They have the moving text on the computers. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहानी भविष्य के बारे में है, 2157 की कहानी है, जिसमें आज के और उस समय के स्टडी मटेरियल्स के बारे में तुलना की गई है कि किन चीज़ों से पढ़ते थे। आज जैसे हम लोग किताबों से पढ़ते हैं, उस समय ई बुक्स हुआ करते थे, कंप्यूटर पर कहानियाँ आती थीं। आज की तरह आदमी टीचर नहीं होता था, बल्कि या तो रोबोट होता था या कंप्यूटर्स होते थे और वर्चुअल क्लासरूम होते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। Margie is the main character of this story. She is an 11 years old girl and she wrote her diary and dated 17th of May and 2157. And she wrote, today Tommy found a real book. Tommy is his elder brother who found a real books. Real books means printed book, something like this, इसके जैसा. It was a very old book and Margie's grandfather once said that when he was a little boy. और मार्गी के पिताजी दादाजी कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, उनके ग्रैंडफादर कहते हैं दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। यानी एक ऐसा समय था जब सारी कहानियाँ पेज पर प्रिंट हुआ करती थी। इट्स मीन देयर इज़ नो कंप्यूटर्स, ई बुक्स एंड ए वर्चुअल क्लासेस। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly. Crinkly means many folds और lines. जैसे किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो they turn yellow, पीली हो जाती हैं, and crinkly means crushed, मुड़ी तुड़ी होती हैं. It was very funny to read words that stood still instead of moving. They were supposed to on a screen. It means they are getting interested and feeling very fun to read this kind of books, because here is not words are moving and they are used to read the books on the screen where the words are moving. Then when they turn back to the page before, और जब वो पहले पेज पर आते हैं, इट्स मीन जो वो पढ़ चुके होते हैं वहाँ दोबारा आते हैं, they find the same words on it. वही कहानी, वही शब्द दोबारा मिलते हैं। when they read after the first time, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, इट्स मीन they are comparing the book to the computer. The computer have many books, many stories on a same computer, but here is the
a book has only one story. Whenever we turn to our previous book and previous page, we find the same story. Gee, said the Tommy, what a waste. क्या बर्बादी है. When you are through with this book, जब आप बुक्स इस बुक से के साथ में होते हैं यानी बुक पढ़ते हैं, you just throw it away. आप इसे उसके बाद फेंक सकते हैं, यानी उसका कोई यूज़ नहीं पढ़ने के बाद में, कहानी ख़त्म. आई गेस ऐसा उसका मानना था. आवर टेलीविजन स्क्रीन must have a million books on it and it good for the plenty more. And the computer had million kinds of the story and books on the same screen. And I would not throw it away. So he don't throw it away. It's mean किताबों को पढ़ने के बाद फेंका जा सकता है, यूजलेस हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर सेम होता है, ई बुक सेम होता है और उस पर दूसरे तीसरी किताबें आती रहती हैं सेम स्क्रीन पर. सेम द माइंड सेट द मार्गी. इट्स मीन्स मार्गी इज ऑल्सो एडमिटिंग दिस काइंड ऑफ थॉट. शी वॉज 11 years. इट्स मीन मार्गी है 11 years old. हैड सीन मेनी बुक्स एज टॉमी हैड. इट्स मीन मार्गी छोटी है इसलिए उसने कम किताबें देखी जितनी कि टॉमी ने देखी, क्योंकि वो 13 years old है. नेक्स्ट, शी सेड. इट्स मीन मार्गी सेड दैट वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कहाँ से तुम्हें मिला. इन द हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग्स. इट्स मीन वो बोल तो देता है किताब मुझे घर से मिली, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी होता है. इन द एटिक, एंड एटिक इज डिफाइंड हियर. इट इज़ अ प्लेस जस्ट बिफोर द रूफ एंड यूज एज अ स्टोर रूम. इट्स मीन वी सेड इट टाड़, यानी टाड़ पर मिला, ऊपर छज्जा जैसा जो बढ़ा होता है. एंड वट इज़ अबाउट इट, और वो पूछती किस बारे में है. एंड ही रिप्लाइड स्कूल. ये कहानी किताब स्कूल के ऊपर है. मार्गी वॉज स्कोनफुल. स्कोनफुल मीन्स घृणापूर्वक. स्कूल के बारे में है. वॉट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट द स्कूल. एंड सी आस्क्ड, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मुझे तो स्कूल से नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेट स्कूल्स बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. एक्चुअली मार्गी को ऐसे भी पढ़ाई लिखाई और स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही उससे नफरत करती है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी. हियर इज मैकेनिकल टीचर मीन्स यांत्रिक टीचर. इट्स मीन कंप्यूटर और रोबोट. तो उसके पास में कंप्यूटर था. हैड गिविंग हर, उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी. वो एक के बाद एक ज्योग्राफी में उसे टेस्ट देते जा रहा था. एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowful and sent for the county inspector. And she was doing her test worse and worse. बुरे से बदतर करती चली जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने उसका सर पकड़ के नहीं लाया. And she think that there is something wrong with the machine. So she called the county inspector. County inspector means the repairer of the computer. यानी कंप्यूटर बनाने वाले को बुलाते हैं कि ज़रूर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, तभी बार बार ये जो भी लिखती है सब गलत बता रहा है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ द टूल विद डायल एंड वायर. जो आदमी आता है रिपेयर करने वाला मशीन को, वो कैसा होता है, राउंड लिटिल, गोल चेहरे वाला आदमी होता है जिसका चेहरा लाल होता है, छोटे कद का आदमी होता है. और होल बॉक्स ऑफ द टूल डायल्स एंड वायर्स. डायल्स वायर्स यानी अपने सारे उपकरण लेकर आता है बॉक्स में जिससे वो बनाएगा. ही स्माइल्ड एट द मार्की एंड गेव हर एप्पल. आता है और उसको सेब दे देता है. देन टुक अ टीचर अपार्ट. अपार्ट मीन्स अलग ले जाना. उसके टीचर को अलग ले जाता है, यानी उसकी मशीन, उसके कंप्यूटर को अलग ले जाता है. मार्गी हैड होप ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. ही वुड नॉट नो, वो नहीं जान पाएगा हाउ टू गेट टुगेदर अगेन. यानी कि जब वो खोल के उसके पार्ट पुर्जे अलग कर देता है तो इसको लगता है शायद वो जोड़ नहीं पाएगा. बट शी न्यू, लेकिन वो जानता है हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो. और एक ही घंटे में उसे पता होता है, वो जोड़ देता है. देयर इट वॉज अगेन. और फिर से लार्ज ब्लैक अगली सा जो उसका स्क्रीन होता है, बिग स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड. वो स्क्रीन काली सी, बड़ी सी, भद्दी सी दिखने लगती है जिस पे सारे लेसन्स और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट वॉज नॉट सो बैड. वो उतना बुरा नहीं था पूरा स्क्रीन. द पार्ट, वो भाग, मार्गी हेटेड, वो भाग जिसे मार्गी हेट करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट.
वो स्लॉट मीन्स एरिया, इधर देखिए डिफाइन है, अ गिवन स्पेस, एक दिया हुआ स्पेस, एक जगह, टाइम या पोजीशन, तो कंप्यूटर का वो हिस्सा वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code. Punch code means computing language, a language which related with the computer. It's mean उसे अपने आंसर एंड क्वेश्चंस जो भी होते थे उसे पंच कोड, एक कंप्यूटर की भाषा में उसे देना पड़ता था। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और वो जब 6 वर्ष की थी तभी से उसे ये याद कराया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और ये मैकेनिकल टीचर जो था वो उसे नो टाइम, बिना समय गंवाए ही जोड़ देता था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू वेयर अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो थैंक यू।